थे, जो लेबनान, इजराइल और अमेरिका का बन रहा है, उसमें अमेरिका प्रिवेल करता है। अगर मैं यही ट्रायंगल लेबनान, अमेरिका और ईरान का बनाऊं, उसमें भी इजराइल प्रिवेल करता। तो इजराइल का जो वर्चस्व है वो किसी भी हालत में उससे ज्यादा है। चाइना की पोजीशन दिन ब दिन भीगी बिल्ली हो रही है। ब्लॉकेड कहीं ना कहीं चाइना के एनर्जी और चाइना की इकोनॉमी को भी इंपैक्ट करता है। अब ये ब्लॉकेड केवल ईरान का नहीं, ईरान के ऑयल का सबसे बड़ा सप्लायर कौन? चाइना। चाइना के इकोनॉमी और चाइना के ऑयल को भी इंपैक्ट करता है, राइट। यहाँ पे सेंटकॉम कह रहा है जी हम पूरे तैयार हैं, अगर अटैक करना है वी आर ऑल लॉक्ड एंड लोडेड। ट्रम्प का जरा वो यार वो पोस्ट दिखाइए ब्लॉकेड का, वो मेरा रह गया था, फोल्ड कीजिए, फोल्ड कीजिए। ट्रम्प का वो पोस्ट, ब्लॉकेड वाला पोस्ट दिखा दीजिए। लेट्स हैव द ट्रम्प, नहीं ये वाला नहीं, बड़ा वाला पोस्ट है, नो नॉट दिस वन, दिस अ बिग ब्लैक पोस्ट, नहीं नॉट दिस वन, नॉट दिस, ये वाला देखिए। अगर ये हम पोस्ट पढ़े, देखिए इसमें पोस्ट पर, लेट्स गो थ्रू इट। So there you had the meeting when the most of the points we agreed were only points where mattered nuclear power. Effectively, immediately, the United States Navy, the finest in the world, will begin with the process of blocking any and all ships trying to leave. Any and all ships trying to leave or enter Strait of Hormuz. At some point, will reach to all being allowed to go in and all being allowed not to go out. मतलब या तो सब जाएंगे, सबको अंदर नहीं जाने देगा। Basis, but Iran has to be allowed. What has happened? Really saying there may be mines or somewhere that nobody exactly knows, but this is world extortion. The leaders of the countries, especially the United States of America, will never be extorted. I have also instructed our Navy to seek and interdict every vessel and international waters. हाँ, ये जरा important है. In every vessel international water who has paid toll to the Iran. No one will pay an illegal toll to have a safe passage on high seas. We will also begin destroying the mines of the Iranian laid in the straits. Any Iranian who fires at, अब ये सुनिएगा, any Iranian who fires at a peaceful vessel will be blown to hell. Iran knows better than anyone how to end the situation which has been already devastated their country. Their navy is gone, air force is gone, their anti-aircraft is gone, radars are useless. Khamenei and most of the leaders are dead, all because of the nuclear ambition. The blockade will begin shortly. Other countries will be involved in this blockade. ठीक है, ये मैं आपको जो नेटो का कह रहा था, नेटो कंट्रीज का, other countries will be involved in this blockade. ठीक है जी, ये वाली बात हो गई यहाँ पे। Other countries will be involved in this blockade. कहाँ गया? Iran will be not allowed to profit from the illegal act of extortion. ठीक है, they want money and more importantly they want क्योंकि उन्हें न्यूक्लियर के, they want nuclear. Additionally and at an appropriate, ये सुनिएगा, additionally and at an appropriate moment we are fully loaded and locked and our military will finish up whatever little is left of Iran. President Donald John Trump. Thank you. We can have this on the screen. We can have a comment of. ये कह रहा है कि हमारी मिलिट्री लोडेड और लॉक है, जो भी इनका बचा है वो हम, अब ये मैं आपको इस संदर्भ में बता रहा हूं क्योंकि सेंटकॉम का वक्तव्य आया था, हम पूरे रेडी है, वी आर ऑल रेडी, वी आर ऑल सेट टू गो इन, वी कैन काइंड ऑफ किल इट एनी टाइम। इजराइल को अमेरिका एक लीगल ट्रांजिट पॉइंट प्रमोट कर रहा है और अरब वर्ल्ड में अब इजराइल को एक ट्रांजिट पॉइंट को लेके सहमति बन रही है। Rather than Syria and all, let's go through the transit point via. Let's go under transit point via Iran. Let's go through the transit point via what do you call this? Israel. ये एक कहीं ना कहीं सहमति बन रही है। ईरान में भी अब जो प्रेशर्स हैं वो और बढ़ रहे हैं, because they don't know how to do it. और यहाँ मैं आपको बताऊं, अमेरिका के तीनों एयरक्राफ्ट कैरियर, इब्राहिम लिंकन, आपका फोर्ड और आपका इब्राहिम लिंकन फोर्ड एंड व्हाट इज दिस नेम, इब्राहिम लिंकन फोर्ड एंड जॉर्ज डब्ल्यू बुश, दे आर गेटिंग देयर। इनका वो एम्फीबियस शिप इज देयर, दूसरा वहां पहुंच चुका है। उन्हें सेंटकॉम ने फिर अपने कमांड में ले लिया। दे आर पुशिंग देम वेयर सेंटकॉम फील्स इट्स अप्रोप्रिएट टू काइंड ऑफ डू इट। और यहाँ ईरान क्या कह रहा है, विल शिप एंड हम चीजों को विल सी शिप्स इन पर्शियन गल्फ, विल सी इन रेड सी, और उनको बेचेंगे। अब किस बाप को बेचेंगे मुझे नहीं पता, वेयर आर दे गोइंग टू सेल देम, बट दे आर सेइंग दैट। यहाँ कमला बहन जी का स्टेटमेंट आ रहा, कह रहा जी ट्रम्प तो मॉब का
He's a leader of the mob boss. I think what she has lost his complete head. और यहाँ पे स्टामर कह रहा कि लेबनान में पीस करना बहुत जरूरी है, नहीं तो पूरा मिडल ईस्ट हिल जाएगा। और इसके साथ ओमान के विदेश मंत्री इसके हाँ में हाँ मिला रहे। डॉक्टर जमीर कह रहे कि भाई एक निर्णायक लड़ाई के लिए इजराइल की सेना तैयार हो रही है। आईडीएफ ने कह कहा था कि हम तैयार हो रहे हैं। पजिस्कियन से जब इसकी बात हुई थी हमने पुतिन की, उन्होंने कहा था भाई तुम जरा होश की बात करो, ट्राई टू एंड दिस एंड ट्राई टू काइंड ऑफ कूल डाउन द सेंटिमेंट्स। यहाँ पे बेन ज़वीर गए थे अलास्का मस्जिद, पूरा हमास हिजबुल्लाह भड़का पड़ा है यार, ये यहूदी अलास्का मस्जिद क्यों गया था। ठीक है, ट्रंप ने कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोस पे हमारा कंट्रोल रहेगा, पूरा रहेगा नहीं रहेगा। और ट्रंप ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोस का नाम भी सोचा, इट विल बी कॉल्ड गल्फ ऑफ ट्रंप। अभी फॉक्स न्यूज को कह रहा था इट विल बी कॉल्ड गल्फ ऑफ ट्रंप, गल्फ ऑफ ट्रंप के नाम से हम रखेंगे। नेतन्याहू बिल्कुल क्लियर है अपनी सिक्योरिटी को लेके, वो अपने नॉर्दर्न इजराइल की सिक्योरिटी को लेके क्लियर है। उनका जो साउदर्न लेबनान को लेके मत है बिल्कुल क्लियर है। अभी थोड़ी देर पहले नेतन्याहू साउदर्न लेबनान की जमीन से भाषण दे रहे थे, ही वाज इनसाइड साउदर्न लेबनान और वहां से वो भाषण दे रहे थे। यहाँ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोस इज काइंड ऑफ हीटिंग अप, क्योंकि ये अमेरिका और व्हाट यू कॉल ईरान के बीच थोड़ा बहुत रस्सा कशी हो रही है। अमेरिका के डिस्ट्रॉयर, उनके बोट्स, एक डिस्ट्रॉयर को आपने उड़ाना है, नाउ दे हैव टू रिटेलिएट। अगर उन्होंने रिटेलिएट कर दिया तो कहानी हो जाएगी, नहीं तो इनकी वाट लग जाएगी। अब देखिए ये जो सारा खेल हो रहा है, ये जो प्रेशर है, आप इकोनॉमिक भी ला रहे हो, आप स्ट्रैटेजिक भी ला रहे हो, आप इंटरनेशनल भी ला रहे हो, आप पॉलिटिकल भी ला रहे हो, आप इसराइल को भाई बता रहे हो, इसराइल के थ्रू चीजों को राउट कराना चाहते हो। अब ये जो एक नई चीजों का अलाइनमेंट हो रहा है, जहां आपने वॉर को काइनेटिक से लेके इकोनॉमिक बना दिया, जहां आप रोज अपने व्हाट वी आर एवरीडे चेंजिंग द व्हाट यू कॉल द बैटलफील्ड। ऑलमोस्ट पॉइंट ऑफ कंटेंशन था, बट आपके यहाँ शिप्स आ रहे हैं, आपके यहाँ देयर आर लॉट शिप्स व्हिच आर कमिंग टू अमेरिका टू बाय ऑयल। मैंने आपको कहा था ये आदमी तब तक खेल खेलता रहेगा जब तक अमेरिका के पास तेल नहीं आएगा। और अभी जो दुनिया भर के नेटवर्क्स है, जो दुनिया भर की इंटेलिजेंस कम्युनिटी है, दे आर नॉट एबल टू गेस ट्रंप का अगला मूव क्या है। दे डोंट नो व्हाट ट्रंप व्हाट्स नेक्स्ट। और ट्रंप के पास विकल्प बने पड़े, मैं आपको कह रहा हूँ, उसके पास विकल्प बने पड़े, उसके पास हर ऑप्शन। और अभी अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज बंद होगी तो सबसे बड़ी वाट किसकी लगेगी? मिडिल ईस्ट की। और अगर मैं आपको बताऊं, कतर कह रहा है कि हमारी रिफाइनरियों से एलएनजी नहीं बन सकता, हीलियम नहीं बन सकता, और रिफाइनरीज आर कंप्लीटली। सऊदियों ने अपनी पाइपलाइंस रिपेयर कर दी है, दे आर क्लेमिंग कि उनका पूरा तेल निकल रहा। अब कितना निकल पा रहा, कितना नहीं निकल पा रहा, अगेन दैट इज समथिंग व्हिच वी डोंट नो। और अब इन्होंने नेतन्याहू ने कंप्लीटली कहा कि अगर मेरे को लेबनान के परिप्रेक्ष्य में एक इंक्रीज सिक्योरिटी जोन भी बढ़ाना पड़ेगा, पहले 1000 स्क्वायर किलोमीटर से ज्यादा, मैं वो भी बनाने को तैयार हूँ। आई हैव नो प्रॉब्लम्स, आई वांट टू इंक्रीज दैट सिक्योरिटी जोन। यहाँ पे चीजें जो है दैट इज गेटिंग आउट ऑफ कंट्रोल, बिकॉज अब ये लेबनान जाके वहां से स्टेटमेंट दे रहे हैं। और लेबनान से जहां तक बातचीत की बात है, बोला हाँ बातचीत करेंगे, यूएस में बातचीत होगी, हमें लेबनान से कोई लफड़ा नहीं है। बट अगर लेबनान ने हिजबुल्लाह पाल रखा, वो लेबनान की समस्या, वो हमारी नहीं है। और ईरान कहता है मैं यूरेनियम नहीं दूंगा, ईरान कहता है कि मैं न्यूक्लियर एम्बिशन नहीं छोड़ने मुझे, कहता जी मैं हिजबुल्लाह को सपोर्ट नहीं करूंगा, छोड़ूंगा हिजबुल्लाह हमास, और मैं बैलिस्टिक मिसाइल्स को लेके मैं कमिटमेंट देने को तैयार नहीं। अमेरिका कहता बॉस ये नो गो फॉर टॉक। इसीलिए पाकिस्तान, जो अगर मैं एक बात आपको बोलूं, ये जो बातचीत पाकिस्तान ने रखवाई थी कॉन्सेप्चुअली फ्लॉट थी। पाकिस्तान ने बातचीत रखवाई थी अमेरिका के कहने पे। पाकिस्तान ने सोचा, देखिए पाकिस्तान है एच के मुल्क, उन्होंने जेडी वांस को ये विश्वास दिलाया, जनाब आप पाकिस्तान आओ, सारी सेटिंग के साथ सब आपके डील करा देंगे। जेडी वांस अपने कैरियर को आगे चलाने के लिए पाकिस्तान पहुंच गया। इन्होंने ईरानियों को ये गोली दी, अरे आपके 10 पॉइंट्स पे बातचीत होगी, आप आइए तो सही। अमेरिका को सेट कर रखा, जेडी वांस हमारे मुट्ठी में है, जो हम बोलेंगे वो होगा। यहाँ चीजें पहुंच गई। जब ये दोनों पहुंच गई, फिर यहाँ क्या हो गया, अब अब यहाँ पे ईरान को आपने उस पोजीशन में डाल दिया, ईरान के पास एस्केलेट करने के सिवा या